Okay, but for the big story, the Congress Vice President Rahul Gandhi, who is very determined to make his visit to Mandsaur. In fact, he is, in the past posed as a champion of the downtrodden, but today he displayed outright high-handedness. The Congress Vice President, who was seen pushing an on-duty officer, and in fact these are exclusive visuals that has been accessed by India Today, visuals of a visibly enraged Rahul Gandhi storming out of his car, slamming the door behind him, charging towards the cop and literally pushing him away from in front of his vehicle. Next, in fact, he's seen pushing the policeman aside and daring him to stop him. Rahul Gandhi then took a bike while attempting to enter Madhya Pradesh from Rajasthan. All this happened after the Congress Vice President was denied permission to enter Madhya Pradesh's violence-hit Mandsaur. Rahul Gandhi is now headed to storm Shivraj Singh Chauhan's bastion, flanked by his senior leaders like Sachin Pilot and Digvijay Singh. In a show of solidarity, the JDU has also sent its emissary, Sharad Yadav, to accompany the Congress Vice President. Senior police officials have told India Today that around 1,000 policemen are on guard. They have been deployed at the border of the state to intercept Rahul Gandhi and his entourage. The question is, wouldn't these cops be better employed across the state to control the situation, to control the violence in Mandsaur? आप कैसे रोक सकते हो? आप कैसे रोक सकते हो? सर आप जो क्या कौन से रोक रोक रहे हो? हटो हटो गाड़ी आ गई। हटो यार हटो हटो Okay, let's go straight across now to Deputy Editor Preeti Chaudhary, who's keeping a very close track of the situation. A very determined and adamant Rahul Gandhi there. Preeti getting into an ugly scuffle with the cops, extremely furious and agitated. Can you just give us an update as to what you're seeing around you? Well, right now, Avantika, we are en route right now. It's a curious case. Nobody quite knows where Rahul Gandhi is. Last, he was spotted at Nagaon, which is a little ahead in Madhya Pradesh from the border of Rajasthan and Madhya Pradesh. The other leadership of the Congress, they have stopped where the police. So all of them are there, but Rahul Gandhi, who after eating at a dhaba had mounted a motorcycle and wanted to make his way through inroads there, through the villages inside, to where especially he wanted to reach the villages where we have the farmers who had expired in the firing day before yesterday. What we do know is, because it's difficult, the topography of the area is difficult. Rahul Gandhi has gotten onto a motorcycle. He was last, like I said, spotted at Nagaon. We're making our way there as we speak. And what we do know is that the entire administration, the fourth-tier security there, has now fallen back a little. They're going into the interiors, especially where the villages of these farmers are concerned. Okay, Preeti, I'll keep coming back to you. We have with us on the phone line BJP MP Mandsaur, Sudhir Gupta, now joining us for more on this. Mr. Sudhir Gupta, thanks so much for speaking to us. हम ये विजुअल्स देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही गुस्से में है, बल्कि वो पुलिस से ये भी पूछ रहे हैं कि उनको कौन रोक सकता है। अब आप बताइए कि आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है, आप क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी और जो दूसरे सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं वो मंदसौर ना विजिट करें? नहीं, हमारे चाहने का कोई प्रश्न नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आखिरकार ये प्रशासन का विषय है जी। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी के पास दो चेहरे हमने अभी कुछ दिनों तक टीवी में देखे। एक चेहरा अभी जो जीतू पटवारी इनके साथ है, वो इंदौर में किसानों के आंदोलनों को भड़काते हुए मीडिया ने पकड़ा। मीडिया को इसके लिए धन्यवाद। दूसरा चेहरा केरल में हमने देखा, जो राहुल गांधी के साथ फोटो में सारे देश और दुनिया ने देखा, और इनका वो साथी गाय काटते हुए पाया गया। अब मुझे बताओ, किसान और गाय, इसमें राहुल गांधी कौन से रोल में खड़ा है? आखिरकार राहुल गांधी पहले गाय के पास और किसान के पास, यहाँ आकर ये कहे किसान से कि वो जो मेरा साथी नहीं, सुधीर जी, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जो है, अच्छा आप मेरी एक बड़ी बात तो सुनिए। जुड़ी हुई सुधीर जी, कांग्रेस का जो कहना है, किसे साथ रख रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं?
अभी जीतू पटवारी को लेकर आए, जो इंदौर में मीडिया ने जिसे ट्रेस कर लिया, उसे साथ साथ घुमा रहे हैं। तो आखिरकार संदेश क्या देना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि किसानों की बेहतरी का कोई संदेश अगर आप लेकर आए हैं तो देश को बताएं, दुनिया को बताएं। वो संदेश 60 साल तक आपके पास कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझ के उनको रोक रहे हैं। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और उनका सारे राइट्स है कि वो जाए और परिवार से मिले, फार्मर से मिले, और ये एक मतलब कंस्पिरेसी है बीजेपी और स्टेट गवर्नमेंट्स की कि उनको रोका जाए। ये कांग्रेस का कहना है। और वो बल्कि कह रहे हैं, वो बीजेपी के दो चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मुझे बताएं, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सारे पीड़ितों से और दाह संस्कार के समय उपस्थित होने के लिए अपने मंत्री साथियों के साथ वहां आए, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जाने दिया। आखिरकार हम डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी सिचुएशन, यह पुलिस व्यवस्था को नियंत्रण करने का प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। जी अभी आई एम जस्ट गेटिंग टू हियर द जीवीएल नरसिम्हा राव राइट नाउ इज एड्रेसिंग द प्रेस। विल जस्ट गो स्ट्रेट देयर। राहुल गांधी की जो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से हिंसा को फैलाने की जो कोशिश रही, यह पूरी जानकारी प्रशासन के पास है। मैं कहना चाहूंगा, जो भी राजनीतिक तत्व है, जो भी नेता इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए जिनका हाथ था, जो किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कई नाम जो हमारे सामने आए हैं, इस पर विचार हो रही है और इसमें पूर्व यहाँ के विधायक का नाम मैंने बताया ही आपको। इसके अलावा पूर्व यहाँ के सांसद की नाम भी है, श्यामलाल जोगचंद, आत्माराम पाटीदार, अमृतलाल पाटीदार, सोमिल नहाता। मेरे पास ऐसे कम से कम 15 नाम हैं। ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, स्थानीय नेता है, कोई विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, कोई उस मंडल अध्यक्ष है जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा चुनाव में। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता है और इसको पूरी तरह राजनीति करके इसके द्वारा हिंसा फैलाने की इनकी तरफ से कोशिश किया गया। आज उसी प्रकरण में राहुल गांधी मंदसौर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए वहां चले जाते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहते हैं। वहां प्रशासन परिस्थितियों को काबू में ला करके हर प्रकार की कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी चाहते हैं ये हिंसा की जो श्रृंखला है ये बना रहे, परिस्थिति और बिगड़े, किसानों का नुकसान हो। इस प्रकार की एक षड्यंत्र के कारण राहुल गांधी इस पूरी हिंसक कांड का नेतृत्व कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए, राजनीति करने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इनको जनता से, किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण, उनके राजनीतिक भूख के कारण कई किसानों की जानें चली गई। इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह सांत्वना प्रकट करना चाहते हैं। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। यदि राहुल गांधी को किसानों के प्रति इस प्रकार की सांत्वना है, मैं पहले चाहूंगा वो बैतूल चले जाएं। जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है, वहां मुल्ताई तालुका, वहां 24 किसानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 1978 में, 1998 में। तो मैं चाहता हूं 98 में उनको जाकर के उन किसानों के परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री रहते हुए 24 किसानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया। जो पार्टी को किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करे राहुल गांधी। देश की जनता उनकी राजनीति को बखूबी समझ गई है। नकारात्मक राजनीति करना
अरे अपने राजनीतिक दिवालापन के लिए मध्य प्रदेश में हर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पराजय किया है। सो ऐसे परिस्थितियों में किसी न किसी प्रकार षड्यंत्र करके अपने समर्थन को, अपनी पार्टी के बेस को एक्सपैंड करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र यदि कांग्रेस पार्टी करती है, नामो निशान मिट जाएगा कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी किसान मित्र है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि सेक्टर में सबसे बेहतर काम किया है। पिछले 5 साल में लगातार 20% से ज्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ है। वहां कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। यहां पिछले 10 साल में कई गुना सिंचाई की जो जमीन की भूमि है उसमें वृद्धि हो गया है। किसानों की फसल और जो प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में दुगना से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे राज्य सरकार जिसकी संवेदनशीलता, जिसकी प्रामाणिकता, हर किसान उसके लिए उसके पक्ष में खड़े होते हैं। राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति करने के लिए, और आज इतनी कांग्रेस पार्टी गिरी हुई है कि यहां पर हिंसा करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है अपने राजनीतिक फायदा के लिए। तो ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को ऐसी सबक सिखाएगी तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव में खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार होने के लिए कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देता हूं। Efforts of Rahul Gandhi and Congress party to politicize and to criminalize a genuine farmer agitation, which was already called off after the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, met most of the genuine demands of the farmers. Mr. Shivraj Singh Chauhan is known to be a friend of the farmers. Madhya Pradesh has excelled in the field of agriculture